Namaskar friends, I am Manoj Maheshwar and welcome you in the show India's upcoming superstars. और आज है मेरे साथ ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, स्टनिंग एक्ट्रेस सायरा. सायरा जी, हाउ आर यू? I'm good, thank you. वेलकम. Thank you so much. एंड स्वागत है आपका हमारी शो में, Thank you. इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स. और आई मस्ट टेल यू वन थिंग इस शो के बारे में. Okay. दूसरे लोग पूछते हैं कि ये क्या है, तो मैंने कहा कि लेट मी डिस्क्राइब ऑन स्क्रीन ऑन दिस वीडियो कि ये ऐसा एक शो है जहाँ पे हमारे कास्टिंग डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स के और जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको बहुत ही आसानी से इस शो के ज़रिए Okay. वो एज एन एक्टर, एज अ मॉडल आपको जान पाएंगे. Wow. Amazing. इज़न्ट इट? Amazing platform. तो और इसके अलावा ये एक टैलेंट हंट प्रोग्राम भी है. Okay. और कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद कुछ बॉलीवुड के नोन एक्टर आप लोगों को जज करेंगे. Wow. उसके लिए कॉल भी आएगा आप लोगों को. एंड Okay. अल्टीमेटली इट्स अ प्रोग्राम एंड यू कैन से इट्स अ पॉडकास्ट बेस्ड ऑन द टैलेंट हंट प्रोग्राम. ओके, Okay. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट वाज एंड व्हाट इज योर चाइल्डहुड ड्रीम? I think my childhood dream हमेशा से रहा है is to get into acting, to be Okay. an actress. पर वो एक जो है एक टाइम था, इट लुक लाइक अ ड्रीम ओनली, कि जो लोग टीवी पे आते हैं वो पता नहीं कुछ मैकेनिकल लोग होंगे जो रियल में नहीं होंगे. तो एज अ किड आई नेवर अंडरस्टूड दे आर रियल पीपल who go and go for auditions and that's how they get acting. So as a child that dream remained a dream to be an actor, but I never thought it can ever come anywhere close to being possible. अच्छा, which was your first show or film or TV show which you acted in? I think the first time I came on, it was a digital platform, 3 digital ads. उसमें मेरा एक छोटा सा किरदार था. That was the first time where childhood dream became real. Like I saw it now, I am that automated person. Very good. So now tell me, how would you define Saira? Define in 2 lines about yourself. What is your likes, dislikes and all? Well, if I have to define myself in 2 lines, I think I'm someone who believes that nothing is impossible. Because, Very good. Because I have faith in the God who has put talent in me, and if He has put talent in me, there will be a place for it to execute. That's the reason He's given it to me. So I never believe that anything is impossible. And the other thing is, I always believe that I shouldn't stop trying, no matter how much I fail and how much all the doors shut. I should not stop going and knocking another door, because I'll never know which door will open at what time. And that is the That's duty of all the actors out there. Thank you. And that is the duty, and this way you have become the inspiration of more than 1 lakh upcoming talents, upcoming actresses like you. इस समय आपको पूरे हिंदुस्तान देख रहे हैं और मुझे इस शो को बनाना भी है बहुत बड़े लेवल पे, और कहीं ना कहीं वो पैशन मेरे अंदर है. एंड आई हैव सीन दैट सेम पैशन इन यू फॉर एक्टिंग, फॉर सिनेमा, फॉर कैमरा. Thank you. हम लोगों ने साथ में काम किया, राइट? Yes. और उस सॉन्ग का नाम था Hmm. साथ न छोड़ेंगे. Yes. और गाइज, मैं इस सॉन्ग का लिंक पेस्ट करूँगा. बस वॉच कितनी खूबसूरती से सायरा ने काम किया है. तो टेल यू वन थिंग कि इस उस शूटिंग के बारे में कुछ ऐसी यादें हैं, बिकॉज लास्ट ईयर शूट किया हमने, Yes. और उसमें आपके ऑपोजिट हमारे MFI अचीवर थे, रुद्रांश, हाँ. जो पहली बार Yes. एक रोमांटिक सॉन्ग करने जा रहे थे. Hmm. तो आपके लिए चैलेंजेस कैसा रहा? I would honestly say मेरे लिए कुछ चैलेंज नहीं था ओके. to work with रुद्रांश और to even work with the choreographer Manish. मेरे लिए वो बहुत एक fun experience था to be connected with these 2 people and to portray what they want. मेरा aim था कि if Rudransh is working with me, he should be able to bring out that character of Rudransh and I should be the support for him. So honestly speaking, मैंने वो पूरा experience इतना enjoy किया, that full day was like a lifetime for me, that one day that I enjoyed every scene. If I would say challenge was only for me to get ready in different outfits on a personal level, बस वही challenge था. But to work with them
It was just all learning and it was all fun and I was actually sad जब वो खत्म हो गया. Oh, so nice of you. And guys, you know what कि ये जो सॉन्ग है ना, आप देखिए जा करके, इतना प्यारा स्टोरी है. एंड थैंक्स टू रुद्रांश, थैंक्स टू मनीष एज अ कोरियोग्राफर, एंड खास 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 थैंक्स टू सायरा. Thank you so much. इन्होंने इस सॉन्ग को इतना प्यारा बना दिया. यू मस्ट वॉच एंड यू विल क्राई. Yes, yes, I must add क्लाइमैक्स that. में यू विल क्राई. Yes. तो आई रियली आई मीन आई एंड दैट डे ओनली ना, उसी दिन से ना आई वॉज फोकस्ड कि नहीं, मुझे आपको लेके आना है. एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म, द बेस्ट मूवीज, बेस्ट सीरीज, वट एवर आई कैन डू फॉर यू. Thank you so much. Well, I And- must add to that song कि they should watch that song because जो innocence उस song में portray किया गया Yes, है yes, yes. through Manish, through the choreography, through the story. Even if you are someone who has been dejected by love, or you know you've had a bad experience, again that hope will come in you. To know love is not that bad. There is something really eternal about it, and it's captured in that song. Yes, yes. So they should watch. And the song itself is so good. I mean, song sung by Mr. Om Jha, and the song composition, writing all by Om Jha, and this song is one of my dream song, and I wanted this song to become a big, and that way the song shot in one day, but the song has become really big. Beautiful. The way you both acted and portrayed the character, right? Thank So thanks once again, because Thank you मेरे so लिए much. क्या होता है ना, मेरे लिए भी आपके लिए भी होगा. Each and every project is your baby, Yes, very much. and we only have to take care. Right. Okay. Okay. My next question is, किस किस लैंग्वेज में आप आई मीन इजी हो? आई मीन आई कैन रियलाइज हिंदी तो आपको आती है, इंग्लिश भी correct. आपको आती है, इसके अलावा Mother tongue is English. Hindi is the language I can speak in. Konkani, I speak in Konkani. कोंकणी कैसा Yes. होता है? Konkani is like Marathi, so I understand Marathi. ओह अच्छा, So if you speak मराठी to आपको me, आती है? I think so. Somewhat. I can understand, yeah, because it's very much like Konkani. Yeah, कोंकणी, yeah. अच्छा अच्छा. And then I always have the flair of learning few sentences in different languages, like a little bit of Bengali I'll understand. अच्छा अच्छा. Because I've lived with so many people from different parts of India. तो so I बेसिकली learned some. बेसिकली आप कहाँ से हो? Basically आपका मैं born- गोवा से हूँ. ओह, आप गोवा से हो? Yes. ओके गाइस, तो गोवा जो है बहुत सुंदर प्लेस है. Very much. आई थिंक इसी की वजह से आप इतनी खूबसूरत हो, इतनी Thank चार्मिंग you, हो, Thank you. और इतनी लविंग हो. रियली Thank you so अप्रिशिएट योर टैलेंट Thank you. सैरा. ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बुला के बोल रहा हूँ, बट यू डिजर्व दैट. और मैंने बहुत कम लड़कियों में देखा है जिसके अंदर हर बार आप शूटिंग पे हो, ऑडिशन पे हो, मीटिंग में हो, हमेशा आपके अंदर जो पैशन है ना, फायर है ना, सेम रहता है. Same. ये कहाँ से लाती हो आप? ये डेडिकेशन कहाँ से लाती है? जैसे मैंने पहले बोला, आई थिंक आई फील गॉड हैज पुट इट इन अच्छा हाँ, और ऑफ वो कोर्स. मुझे वही लेके जाएगा जहाँ इसका यूज होगा सही से. Yes, तो मैं yes. बस वो लीड फॉलो कर रही हूँ, नहीं तो वो मेरे अंदर फट जाएगा. सो आई हैव Oh. टू फाइंड अ प्लेस जहाँ पे उसको मैं अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाऊँ. ओके ओके ओके. So it's like that. सो ऑल माय कास्टिंग डायरेक्टर्स, ऑल माय फ्रेंड्स, प्रोड्यूसर्स, देखिए मैंने ला दिया है प्लेटफॉर्म पे सायरा को. सो नाउ शी इज रेडी. आप बहुत सारा काम दीजिए इनको, ताकि इनको Thank बहुत you. सारा, बिकॉज शी डिजर्व्स टू बिकम इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार. थैंक यू. एंड आई नो दैट कि आप डिजर्व करती हो. एंड क्या होता है जब कोई चीज़ लेट से मिलता है ना, हाँ, तो वो ठहरता है. वेरी इट ट्रू. रिमेन्स फॉर एवर. वेरी ट्रू. ये मेरे भी साथ हुआ है. वेरी ट्रू. इनफैक्ट आई वुड ऐड टू दैट एंड से मुझे उस चीज से डर लगता है जो बहुत इजीली, हाँ. आसानी से, अचानक से, तुरंत मिलता है. यू नो, मैं डाउट करने लगती हूँ. एग्जैक्टली. यू शुड. तो शायद मैं आपसे मिला 4 साल 5 साल पहले, राइट? Yes. बिफोर कोविड. बिफोर कोविड. और फिर आपको जानता गया. और अब जाकर के मुझ में वो फेथ है. और अभी भी जब मुझे कहीं पर कोई स्कोप मिलता है, जब कोई न्यू फेस के लिए मुझे कहता है, तो मैं आपका प्रोफाइल भेजता हूँ उस थैंक यू. कास्टिंग डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर्स को, और मुझे कहता है कि इनका स्किल, टैलेंट, पोटेंशियल, मैं कहता हूँ कि आई टेक गारंटी ऑफ एडर. थैंक यू. ऑलरेडी मेरे काम सामने किया हुआ है. आई नो पोटेंशियल कैसा है. सेम तो- फ्रॉम मी. आई टू व्हेन आई नो, अगर मैं कोई ऑडिशन देखती हूँ कि दैट इज हैपनिंग हियर, आई हैव नो सेकंड थॉट्स. आई डायरेक्टली से आई एम कमिंग. मुझे आना है, ट्राई करना है. आई विल वेट, आई विल गिव माय टाइम. दैट्स इट. एंड यू नो व्हाट सायरा, आप में वो सारी खूबियाँ हैं. मैंने महसूस किया 4-5 सालों में. सबसे मेन जो खूबी आपके अंदर है ना, जो एक ज़रूरी है होना एक्ट्रेस में, टाइम मैनेजमेंट. ओके.
वो जो एक खूबी है ना, अगर आप टाइम पर, बिकॉज टाइम इज प्रेशियस, या वेरी और मच कोई अगर आपको टाइम दे रहा है मतलब वो आपके जीवन, अपने जीवन का एक पार्ट। पार्ट दे रहा है, तो करेक्ट। वो आप समझती हो टाइम से। मैंने जब बुलाया है आपके ऑडिशंस के लिए हो, शूटिंग के लिए, यू आर देयर बिफोर टाइम, ये ओके एक प्लस पॉइंट है। ओके एट द सेम टाइम आपकी स्किल, आपका डेडिकेशन टुवर्ड्स योर आई मीन आर्ट क्राफ्ट, वो सारा आपके अंदर भरा हुआ है। सो हम चाहेंगे कि जो अपकमिंग टैलेंट है ना, वो आपको देखे, आपसे बहुत कुछ सीखे, बिकॉज सी व्हाट कि आप तो ऑलरेडी फॉलो कर रही हो प्रोसेस को, यस लेकिन बहुत से ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जो 6 महीने में, 1 साल में, मतलब वो डर जाते हैं या फिर दे करेक्ट बिकम नर्वस कि अब मेरा क्या होगा या अब। राइट। बट एक्चुअली मुझे लगता है, डोंट यू फील सो, कि इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। It's a never ending process, and I think जो the main thing that has to come out from you in this whole process, whether you make it or not, is your attitude. यस, Your attitude, it is turned left, right and center in this process, and how much you survive, वो attitude ही आपको आगे लेके जाता है। एंड यू आर सो मच आई मीन ब्लेस्ड कि इतने आपके इतने कम उम्र में आपने इतना कुछ समझ लिया इन चीज़ों All को। glory to God. मैंने देखा है कि बहुत सारे एक्टर आते हैं, आई मीन 10 साल से लगा हुआ हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, Yeah. तो मैं उन्हें कहता हूँ कि 10 साल आपने अगर यहाँ पर हैं, हाँ। दैट मीन्स समथिंग बिग इज कमिंग अप, Yes. True. समथिंग बिग इज कमिंग अप, सो डोंट लूज योर हार्ट, Yeah. डोंट बिकम डिसहार्टेड। तो वो चीज़ आपने समझ लिया है, और इसीलिए आप, मैं देखता हूँ आपको कि जब आप कोई परफॉर्मेंस करते हो, चाहे वो ऑडिशन में हो, चाहे वो कैमरे के सामने परफॉर्म कर रहे हो, चाहे वो फील्ड में है, सेम एनर्जी से आप करते हो, राइट? तो ऐसा आपको लगता है, जैसे होता है ना, ऑडिशन में गए तो लगता है कि यार यहाँ थोड़ा सा कम एफर्ट डालो, या आप सेम डालती हो एफर्ट शूटिंग में भी, ऑडिशन में भी? I think always जब वो खत्म हो जाता है, always feel I could have done better. अच्छा, Always, वो कभी ऐसा नहीं लगा दैट that, हंगर शुड बी देयर, हाँ, it's दैट always हंगर like नहीं, शुड I बी could देयर। have done better. भले ही सामने वाला will say, you know, it was very good. I'm like, I still think I could have done better. वो हमेशा से almost in every project. it's अच्छा, like अब ये that. बताइए कि बॉलीवुड या हॉलीवुड या किसी भी वुड में आपके लिए आपका फेवरेट एक्टर अगर बोलूँ मैं, एक या दो एक्टर या एक्ट्रेस कौन है जिसको आप चाहती हो, मतलब फॉलो करती हो? Honestly, मेरे लिए एक ऐसा है नहीं. I can name people, but I am that kind of person जो हर एक एक्टर में कुछ ना कुछ मुझे ऐसा अट्रैक्टिव लगता है, बिकॉज मैं उस एक्टर को स्क्रीन पे ही नहीं देखती. आई सी वेयर दैट एक्टर केम फ्रॉम, उसका जर्नी कैसे रहा है, हाउ ही गॉट दैट रोल, उस रोल में उसने कितना जस्टिस किया, अब वो क्या कर रहा है. तो इट्स नॉट जस्ट व्हाट आई सी ऑन द स्क्रीन एंड आई से गुड एक्टिंग, क्योंकि गुड एक्टिंग इज डिफाइंड बाय द स्क्रीन, by the script and the director. Actor is just executing what you want and you want. Yes, yes. It's not what he can do at that time. He is just packaging it well. But what makes him there is वो कहाँ से आया, कैसे उसमें घुस गया और कहाँ जा रहा है. So ऐसे देखा जाए तो हर कोई eligible है to be Yes, yes, to yes, be yes, a of good course, one. of course. So it's like that for me. तो अब मुझे ये बताइए, जब आपके पास आता है स्क्रिप्ट, व्हेन यू गेट द स्क्रिप्ट, Okay. तो आप क्या देखती हो उसको, मतलब प्ले करने के पहले उसमें आप क्या ढूंढती हो स्क्रिप्ट में? हर एक स्क्रिप्ट में याद तो आपने कर लिया लाइंस, हाँ, okay. उसके बाद क्या देखती हो? आई थिंक लाइंस करने से पहले मैं ये देखती हूँ, डू आई अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर. हाँ, तो 3 4 5 सवाल बैक टू बैक पूछूंगी, ये क्या करती है, कहाँ से, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन से मोड पे है ये कहानी. देन आई इमेजिन द कैरेक्टर, देन आई ट्राई टू पोर्ट्रे माई सेल्फ एंड सी इफ आई एम डूइंग जस्टिस की टू व्हाट दैट कैरेक्टर इज. सो नाइस, वेल आंसर. अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा स्टार है जिनके साथ आप चाहती हो काम करना? शाहरुख खान. शाहरुख खान. I've got dreams also about him, that I'm working with him. Oh, really? I've got dreams. 2-3 times they've come dream. He and Johnny Lever have come in my dream. that No I'm wonder working you with them. can do and you will be, because अभी जिस तरह की फिल्में शाहरुख खान जी कर रहे हैं, Yeah. लाइक डंकी में देखो, तपसी Yes, पन्नू, तापसी पन्नू. है ना? Correct, exactly. तो एकदम वो कैरेक्टर अलग है, बट देन उन्होंने Right. पोर्ट्रे किया पूरा कैरेक्टर, तो आप भी करोगी, आई नो द डे विल Thank कम. you. Thank you. ओके, तो अभी अपना जो नेक्स्ट है, अच्छा, ये OTT के आने के बाद व्हाट यू Okay. फील लाइक, OTT के आने के बाद यू फील दैट वर्क हैव इंक्रीज्ड फॉर द एक्टर्स, और चैलेंजेस बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं, भीड़ बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं,
बिकॉज काम तो बढ़ गए हैं, बिकॉज आई नो एज अ प्रोड्यूसर, आई नो लॉट्स ऑफ दिस वेब सीरीज, वेब फिल्म, वेब शोज आर कमिंग अप. आपने भी किया है, राइट? एग्जैक्टली. आई थिंक ये बहुत ही अच्छा टाइम है किसी को एक्टर बनना बिकॉज ऑफ OTT. आई मीन इफ़ यू सी द नंबर ऑफ OTTs जो हैं, अलग अलग OTTs है अलग अलग कंटेंट के लिए, और हर एक एक्टर के लिए अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गए हैं. इमेजिन एक टाइम था 90s में जो सिर्फ हम थिएटर में जाके देखते थे. cinema. तो जैसे मैं चाइल्डहुड में थी, आई मीन हाउ वुड आई हैव थॉट कि वहाँ जाऊँ, लेकिन अभी OTT की वजह से हर टाइम कोई ना कोई ऑडिशन है, कोई ना कोई कंटेंट रिलीज हो रहा है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर चाहिए, कहीं ना कहीं मिलेगा किसी को एक्टर बनना. तो अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, और हर किसी में वो टैलेंट अगर है तो डेफिनेटली मौका मिल सकता है. That's what. तो अब ये बताइए कि सिनेमा एक लार्ज कैनवास है, लाइक ओटीटी कैन बिकम, वो हम देखते हैं टीवी पे या फिर फोन में, राइट? तो जब हम कैरेक्टर प्ले करते हैं, सपोज आपसे कहा गया कि ये फिल्म का ऑडिशन है, एंड द सेम डे आपसे कहा गया कि ये ऑडिशन ओटीटी के लिए है, तो कुछ अलग उसमें एक्ट करते हो आप? ओटीटी के लिए है तो अलग करूँ, या सिनेमा के लिए तो अलग से करूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं. एक्टर जो आर्टिस्ट है ही इज सोल्ड आउट कम्प्लीटली. चाहे आप उसको फ़ोन पे देखो, किसी टेलीविज़न पे देखो, या फिर बड़े पर्दे पे देखो, उसका जो किरदार होना चाहिए, जो क्राफ्ट होना चाहिए, वो 100% होना चाहिए. कहाँ पे देखना है वो ऑडियंस विल डिसाइड, नॉट अस. वेरी गुड. अब मेरा लास्ट क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ओके. और टाइम की लिमिटेशन है, बट लास्ट क्वेश्चन, आपके फैमिली मेंबर्स सपोर्ट करते हैं आपको एज एन एक्टर? अब तो आपने बहुत कुछ कर लिया है. यस. सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव रहे हैं शुरू से? दे हैव बीन सपोर्टिव टू यू? पहले तो उनको समझ में नहीं आया, जैसे मैं खुद कंफ्यूज थी कि ये क्या है, पर जब उन्हें देखा कि आई एम कम टू मुंबई एंड यहाँ का माहौल कैसे है, यहाँ पे बाकी लोग भी जाते हैं ऑडिशन के लिए, पहले वो लोग भी कंफ्यूज थे, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि ये क्या है और कैसा होता है प्रोसेस. दे मस्ट हैव सीन द स्क्रीन. यस. आपको देखा होगा. तो उनका पहला क्या रिएक्शन उनका? वो लोग बहुत ऐसे फिर भी कंफ्यूज थे कि अच्छा ओके ये सब भी होता है, क्योंकि मेरे फैमिली में वो एक लौती लड़की थी हु वाज नट्स अबाउट बॉलीवुड. कोई ऐसा इतना पागल नहीं था सिनेमा के लिए. तो उनके लिए ये पैशन भी समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर वो क्या समझते हैं कि ओके वो खुश है, वो कर रही है, उसको पता है वो क्या कर रही है, लेट इट बी, एज लॉन्ग एज शी इज मैनेजिंग एवरीथिंग ऑन हर ओन. यस. तो अच्छा, एक और सवाल था मेरा कि आप जॉब भी करती हो, और जॉब करते करते आप एक्टिंग भी करती हो, तो ये उन तमाम अपकमिंग एक्टर्स के लिए सवाल जो मुझसे पूछते रहते हैं कि सर मैं जॉब भी करती हूँ, क्या मैं एक्टर बन पाऊँगी? तो देखिए, सारा जी खुद एग्जांपल है उन तमाम एक्ट्रेसेस के लिए कि जो जॉब भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, एंड शी इज डूइंग वेरी वेल. थैंक यू. और आई विश कि यू कुड गेट मोर बिगर वर्क, मोर वर्क, और मिलेगा आपको, और बहुत कुछ सरप्राइजेज आपके लिए हमारी तरफ से भी है, बताऊंगा आपको. हमारे भी कई फिल्मों के लिए, सीरीज के लिए इस साल आप हो शॉर्टलिस्टेड. और MFI टीम में काम करके कैसा लगता है आपको? MFI की हमारी टीम जो है खास करके, आई थिंक आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन बाय सेइंग कि यहाँ जो है ये इसका वैल्यू जानने के लिए मुझे ये बोलना पड़ेगा कि बाहर क्या है. जब किसी ने बाहर जो है वो टेस्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली जब MFI के अंदर आता है, आपको ऐसा लगता है इज इट रियली ट्रू, इज इट रियली टू गुड टू बी ट्रू, दिस इज टू कंफर्टेबल, दिस इज टू प्रोफेशनल, दिस इज टू क्लियर, नो मच नो फाइट्स, नथिंग, इट इज़ जस्ट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो जब पूरे दुनिया में घूम के आते हैं ना, तब इसका वैल्यू समझ में आता है. और मैं वैसी हूँ, मैंने बहुत सारे जगह पे बहुत सारे जगह गई हूँ. हाँ, तो व्हेन आई केम हियर I was thinking जब हो जाएगा तब बिलीव करूँगी. तो I have already worked, तो I know this is a very comfortable, safe place for a female actor who can pursue something. भले ही धीरे हो जाएगा, पर होगा ज़रूर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपने इतना अच्छा जवाब दिया, एंड हम चाहेंगे, और मुझे मालूम है कि हमारे जो ऑडियंस है और हमारे जो वेल विशर्स हैं, वो इस चैनल पे चाहेंगे आपको देखना बार बार. और हम अपनी नेक्स्ट शूटिंग के बाद ज़रूर वादा करता हूँ आप लोगों से कि मैं फिर से लेके आऊँगा सायरा को. थैंक यू. हमारे शूटिंग के बाद, और इनसे हम पूछेंगे और सवाल जो आज छूट गए हैं पूछना.
So thank you so much. Thank you, you. Sarah. Thank you so much for this And opportunity. thank you so much. I wish you all the best. Thank you. और आप बहुत 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 बड़ी एक्टर बनो. Okay. And ऑलरेडी आप हो मेरे लिए, हमारे लिए आप हो. Thank you. Because she is the one, she could become the India's next superstar. Thank you so much. Thank Good day. you.